Okay, good morning, 10th standard. So, today we are going to start with the challenges of the political parties. You can also say the limitations of political parties. This is the second last topic of the chapter. After this, only one topic will be left, that is reformation of political parties. So, from September 1 or on September 1, you have to send me the notes of chapter number 3, political parties. I just want to see how you have made the note, and after that we are going to revise chapter 3, and chapter 4 we are going to start with the mid of September. So there's no need to be in panic कि my syllabus is behind. We are going to finish it off till the end of September, because the last chapter carries only 3-4 important topics. So today we are going to start with the challenges of political parties. Means what kind of challenges which are faced by the political parties, we are going to read that. The first is, this is very important question for 5 marks, so please write it down in a proper way. I am sending you the notes, so please note down the notes properly. The first point is lack of internal democracy. इंटरनल मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर क्या क्या चलता है वो हमें नहीं पता है. वी नो दैट यस दे आर फॉर्मिंग वेरियस लॉज, दे आर फॉर्मिंग वेरियस प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ फॉर अस एंड वी आर डूइंग, और उनके अंदर क्या चलता है दैट वी डोंट नो. सो दैट बेसिकली इज़ अ चैलेंज फॉर देम. So first point is concentration of power in one or few hands of leaders at the top. Internal democracy की वजह से भी कभी कभार होता ये है कि क्योंकि जो लीडर है सारे डिसीजंस वही लेता है, सो इनकी वजह से भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. सेकंड, पार्टीज डज नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर. मीन दे डज नॉट नो who are the new members in their party. Third point, do not have organizational meeting, like every time they do not held meeting. They think कि okay, now if the leader is there, he will take all the decision. The rest we don't need their we don't need their views to put in our policies and programs. So the leader, the important part of the political party, he or she take the decision. The rest they don't take a meeting. Ordinary members of party does not sufficient information. Like the party, ordinary members of the party, they do not have the sufficient information regarding the policies which they are making. Like for example, हम अपने स्कूल का ही लेते हैं. स्कूल में वॉट एवर द थिंग इज़ देयर, लाइक जो भी सर्कुलर पास होता है जो प्रिंसिपल ने दिया है, सबसे पहले वो हमको बताया जाता है, देन हम साइन करते हैं, देन हम आपको पास ऑन करते हैं. ऐसा तो नहीं होता कि जो मैनेजमेंट है वो कुछ भी डिसीजन ले रहा है और आपको भी नहीं पता और हमको भी नहीं पता. जैसे ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, आपको कैसे पता है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं? बिकॉज वी आर सेंडिंग द वीडियोज़. आई थिंक वन मोर थिंग आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू विद दिस वीडियो दैट you people, I know that in many schools online classes are there, but I think जो बेस्ट होता है उसको डिफरेंट सोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती. आई थिंक ही कैन स्टडी इफ़ ऑनलाइन क्लासेस इज़ देयर एंड इफ़ ऑनलाइन क्लासेस इज़ नॉट देयर. उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसका कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई में है, नॉट द अदर थिंग. तो आई थिंक बुक आप लोगों के पास है. इफ़ यू आर हैविंग टाइम, यू कैन रीड एंड यू कैन आस्क ऑल्सो. बट अगर आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों में लग जाएंगे कि ओके ऑनलाइन क्लासेस इनके स्कूल में हो रहा, उनके स्कूल में नहीं हो रहा, तो फिर आप इन्हीं चीज़ों में रह जाएंगे. सो स्टॉप टेकिंग आउट एक्सक्यूजेस. बेटर वर्क हार्ड ऑन द थिंग्स विच वी आर डूइंग. आई थिंक मेकिंग एन वीडियो इज़ नॉट एन ईजी टास्क for a teacher. We are doing our best so that you people can get. And in response what some of you are saying, I just don't want to repeat that thing again. So whatever we are just giving the video, hear it. If you are having any problem, ask it through WhatsApp. So internal democracy में बीच में ही कुछ होता रहता है, एंड पार्टी जो मेन लीडर्स होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज दे डोंट बॉदर व्हाट द ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ देयर पार्टी आर डूइंग. So this is also a challenge for the political party. The last point, some leaders enjoy
permanent power, those who disagree they find difficult to continue in the party. ना वही होता है जो हाँ में हाँ मिलाता है, दे आर द फेवरेट्स ऑफ द मेन लीडर्स, एंड जिनको पसंद नहीं आता है उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है पार्टी में रहना. सो फर्स्ट है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. उसमें हमने 6 पॉइंट्स पढ़े. पहला है सारा पावर जो लीडर्स, टॉप के लीडर्स हैं उनके पास होता है. सेकंड, मेंबरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कौन कौन से मेंबर उनको पता ही नहीं रहता है. तीसरा, कोई मीटिंग नहीं होती है. जो भी चीज़ें बनाई जाती है लोगों के लिए वो बाकी मेंबर को पता ही नहीं होता है. जो हेड्स हैं वही बना के करते जाते हैं, बाकी मेंबर्स को उनके बारे में पता ही नहीं होता. फोर्थ पॉइंट, ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी डज नॉट हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन. बिकॉज उनको इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं होती? क्योंकि मीटिंग्स ही नहीं हो रही, क्या कहते हैं, लोगों को बताया ही नहीं जा रहा. सो दैट इज़ व्हाई दे वर हैविंग लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट परमानेंट, दो लीडर्स हुआ है परमानेंट पावर्स, मीन्स यस ये हमारी पार्टी में है, इसको हमें नहीं हटाना है. तो वही सारी जो चीज़ें वो इन्जॉय कर रहा है. जो दूसरे लोग हैं जिनको इन्फॉर्मेशन वगैरह कुछ मिल ही नहीं, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू बी इन द party. So that is the lack of internal democracy. Point number 2 is dynastic succession. I think in 9th standard in the last chapter we have discussed it that जो एक नेता अगर पॉलिटिकल पार्टी में है तो वो चाहता है कि उसके ही फैमिली मेम्बर्स सारे के सारे पार्टी में आते रहे, पार्टी की टिकट लेते रहे और रूल करते रहे, कोई और रूल ना करे. आई थिंक एक ये भी लिमिटेशंस है. तो अगर आपने 9th का सोशल अच्छा तरीके से पढ़ा होगा तो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा. सो फर्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल पार्टीज डज नॉट फॉलो ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स फॉर देयर फंक्शनिंग. नाउ पॉलिटिकल पार्टीज दे डू नॉट शो ईच एंड एवरीथिंग to the people and to the members which are there in their party कि yes we are doing this. So everything is not transparent. मतलब सब चीज़ें छुपा छुपा के ही होती जाती हैं. सेकेंड, इन मैनी पार्टीज टॉप पोजीशंस आर ऑलवेज रिजर्व फॉर वन मेंबर ऑफ द फैमिली. दिस इज़ अनफेयर टू द अदर पार्टी मेंबर्स. नाउ उनकी पार्टी में जो लीडर होता है वो कोशिश करता है कि उसका ही जो फैमिली मेंबर है वो नेक्स्ट आए, रेदर देन जो उनके पार्टी में और भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटेलिजेंट लोग हैं वो उनको प्रेफरेंस ना दे के अपनी फैमिली मेम्बर्स को प्रेफरेंस देते हैं. दिस इज़ बैड फॉर डेमोक्रेसी एज वेल एज फॉर द पीपल हु डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट टू कम टू ऑक्यूपाई पोजिशन ऑफ पावर. ना इससे जो तीसरा है डीमेरिट वो ये है कि जो लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं उनको मौका ही नहीं मिलता कि वो जाके अपना बेस्ट दे पाए. बिकॉज वो क्या होता है, जो फैमिली मेम्बर्स हैं वही आगे बढ़ जाते हैं. वी कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ कांग्रेस. लाइक एज यू नो दैट राहुल गांधी इज ट्राइंग फॉर प्राइम मिनिस्टर बट ही इज़ नॉट. अगर आप उसकी कैपेबिलिटीज़ देखें, हर एक चीज़ जो उसके स्लोगन्स होते हैं या फिर जब भी इलेक्शंस के टाइम में जो भी वो बोलते हैं वो कंपैरिजन और एक एफिशिएंट लीडर का आप कंपैरिजन करें तो आपको पता चलेगा दैट ही इज़ नॉट, ही कांट बी, मतलब वो एक पीएम के लिए खड़े नहीं हो सकते. आई एम नॉट टेकिंग एनी पॉलिटिकल साइड, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल. ना अगर आप बिहार में देखेंगे जो लालू यादव रूल कर रहे थे, अभी आप देखें उनके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बाद वो रूल कर रहे हैं. पहले उनकी पत्नी आई, फिर उनके बेटे आए, फिर उनकी बेटियां आ गई. सो होता यही है कि जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं उनको चांस ही नहीं मिलता बिकॉज ऑफ द डायनेस्टिक सक्सेशन. ये भी एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी के लिए और लिमिटेशंस है पॉलिटिकल पार्टी के लिए. थर्ड वन इज लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस. लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस वी कैन से दैट कि इलेक्शंस के टाइम पे जो वोटर्स होते हैं, वी द पीपल, हमारे पास चॉइस ही नहीं होता है. हमारे पास ऐसे कैंडिडेट खड़े होते हैं कि हम नहीं चाहते उनको वोट देना, बट जो अपोजिशन में होते हैं वो हमसे ज़्यादा, मतलब दोनों हेट्रेड की कंडीशन में है, बट एक कम है और एक ज़्यादा है. तो हम क्या करते हैं, जो कम वाला उसको वोट देते हैं. तो जो पार्टीज़ होती हैं दे डू नॉट ऑफर मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स. दे हैव टू गिव. In our country, differences among all major parties on economic policies have reduced. Those who want different policies have no option available to them. Sometimes voters do not have choice to vote for good candidate, and candidate keep on shifting from one party to another.
सचिन पायलट का आपने नाम सुना होगा, अभी हाल ही में चल रहा है। कभी कभार क्या होता है कि पीपल दे डज नॉट लाइक देयर पार्टी, सो दे वांट टू शिफ्ट देयर पार्टी टू द अनदर पार्टी। कभी या फिर हो सकता है कि उनकी जो क्वालिफिकेशन उसके आधार पे उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिले, दैट इज ही शी वांट्स टू चेंज द पार्टी। तो इसीलिए एक और जो मेजर लिमिटेशंस है पॉलिटिकल पार्टीज का वो है कि लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। द पॉलिटिकल पार्टीज दे आर नॉट गिविंग द फुल choice to the voters to vote for them. And the last one is money and muscle power. I think this also we have read in 9th standard. The person who is having money, he enjoys the person who is having the muscle power, he only wins the elections. जो capable candidate है वो, because he do not want to put his leg in such a thing like elections for a people, for qualified people, he does not want to go inside, because उसमें इतना पॉलिटिक्स होता है कि एक अच्छा इंसान जो देश के लिए करना चाहता है वो नहीं चाहता कि वो यहाँ पे जाके अपने आप को बदल ले, क्योंकि पॉलिटिक्स में जनरली आप जिस इंथुजियाज्म से जाते हैं वो वहाँ पे जाके टोटली चेंज हो जाता है। सो कभी कभार ये भी रीज़न होता है कि जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं वो नहीं जा पाते। दूसरा, मनी एंड मसल पावर की वजह से दे डू नॉट वांट टू जो इलेक्शंस होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं, मनी और मसल पावर की वजह से जो कैंडिडेट हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो जीतने वाले होते हैं वो नहीं जीतते, बिकॉज वो लोग धमका के विद द मसल पावर और विद द मनी पावर वो किसी और पार्टी को जिता देते हैं। ठीक है, सो नोट्स आई बी गिविंग यू पीपल। Okay, so the challenges of political parties or the limitations of political parties, we have discussed 4 points. This is very important question, so please note down the notes which I'll be giving you through notes. So please note down that. If you want to add some new points, you can share it through WhatsApp. So the first challenge is the lack of internal democracy within the parties के अंदर ही बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चलता है, उसकी वजह से भी क्या हो जाती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को चैलेंज फेस करना पड़ता है बहुत सारा, कि जो टॉप मोस्ट लीडर होता है सारा पावर वही लेता है, मीटिंग्स नहीं होती, ऑर्गेनाइजेशंस नहीं बनाई जाती, लोगों को बुला के बताया नहीं जाता है और डिसीजंस जो टॉप लीडर वही ले लेते हैं। सेकंड चैलेंज इज डायनेस्टिक सक्सेशन, दैट इज़ जो लीडर है वो अपने फैमिली मेम्बर्स को ही आगे बढ़ा रहा है और जो एक्सपीरियंस होल्डर है वो रह जाते हैं, और जिससे कि क्या हो जाता है, जो रूल कर रहा है सिर्फ उसी की फैमिली वाले रूल कर रहे होते हैं, बाकी नहीं। थर्ड वॉज मनी एंड मसल पावर। इसमें होता ये है कि कभी कभार जिनके क्रिमिनल्स बैकग्राउंड होते हैं विद द मनी एंड मसल पावर दे विन द इलेक्शन, भले ही वो उतने क्वालिफाइड हों या फिर ना हो। Now the fourth one is meaningful choice to the voters. The voters, as we the people, as we the voters, we do not have the choices to elect the good candidate for the party. वो जो political parties होते हैं हमारे पास meaningful candidate रखते ही नहीं है जिससे कि हम एक proper अच्छा उम्मीदवार elect कर सके. So these are the major challenges which a political party faces. So please note down the notes which I'll be sending you tomorrow. Thank you class.